Hello, children. Today we have to continue our exercise 11.3. Fine. In the last video, we had done up to question number 9. Okay. So now we have to start with question number 10. Okay. So here I'm going to solve question number 10. So in question number 10, vertices are given to us. So the vertices are plus minus 5 comma 0. And foci is also given. Foci is plus minus 4 comma 0. Okay, as you can see from this data, if the vertex value of x is given to us in case of vertex, and foci here, the your y-axis is 0, that means your foci will lie on x-axis. So that means your ellipse would be like this. See, okay, it would be like this. Fine. So here your foci, as you know that the coordinates of foci would be c comma 0. So if you compare to c would be 5, c would be 4, sorry. Fine. And these are the vertex. So it is minus 5 comma 0 and this is 5 comma 0. That means what? This is your a. This is 0 0. This is origin. And if this distance is 5, that means if this is 5 and this is 5, so your a would be 5. So here your a would be 5. Okay, because this is your major axis now. So 2a hota aapka major axis, and this is 5, this is also 5, so 2a is equal to 10. So your a would be 5. फाइन, ऐसे भी कर सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है, ये हाफ ऑफ 2a होता है, दैट इज a ओनली. फाइन. सो आपका a जो आ रहा है वो 5 आ रहा है. अब बच्चे c मिल गया, a मिल गया, तो आप क्या करोगे? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. आपको ये फॉर्मूला पता है. पुट दिस वैल्यू, योर a स्क्वायर इज 25, your b square would remain the same, and your c square is 4 square, that means it would be 16. So your b square would be 9 and your b would be 3. Fine. Plus minus 3 actually. Got it? So this would be 0 comma 3, this point, and this would be 0 comma minus 3. Got it? So ABC बेटा हमें मिल गया, और इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशन ही निकालनी है एलिप्स की. सो योर एक्स स्क्वायर ओवर योर ए इज 5, so a square would be 25 plus this is plus over b square, your b is 3, so square would be 9, so it which is equals to 1. So this is the required equation of the ellipse which you have to calculate. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? वो जो आपका एलिप्स है, दैट इज द मेजर एक्सिस विल लाई ऑन वाई एक्सिस. ओके, सो ये आपने खुद करना है. Question number 11, and question number 12 is same like this. Question number 10, fine. Question number 13. Okay, question number 13 I'm doing. Okay, after the question number 10, 11 and 12 you can solve. Question number 13 I'm solving. The end of the major axis are given. This is plus minus 3 comma 0, and minor axis के जो coordinates है वो हमें given है 0 comma plus minus 2. This is your minor axis, this is your major axis. ठीक है, तो as you can see that the major axis, the value of x is given to you for major axis, so it is also,
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, फाइन। सो ऐसे बनेगा आपका लिस्ट, मैंने रफली ड्रॉ करा है, इसको देख लेना एक बार। तो आपका बचा मेजर एक्सिस में आपको ए गिवन है 3, है ना। मेजर एक्सिस अगर गिवन है तो आपका जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज योर ए, एंड इफ द माइनर एक्सिस गिवन दिस इज योर बी। ठीक है, इक्वेशन निकल जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डाल देना ए और बी की वैल्यू, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सी इन क्वेश्चन नंबर 15 द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज गिवन टू यू, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 26, तो योर a वुड बी 13। आपको एक तो ये गिवन है, एंड फोकाई, बट फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है दैट इज प्लस माइनस 5,0, दैट मीन्स c वुड बी 5। ओके, तो b निकाल दो आप। फॉर्मूला इज a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। योर a स्क्वायर इज 169, c square is 25 plus b square, so it will come here, so you will get 144 is equals to b square। ठीक है, b square आपका 144 आ गया, तो इक्वेशन निकाल दो। दिस इज ऑल्सो foci is lying on the x-axis ना, so it is also the figure of this ellipse would be like this, it is the major axis will lie on x-axis। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डाल देना ए और बी की वैल्यू, खत्म क्वेश्चन आपका 15 भी। ठीक है, ए स्क्वायर आपको गिवन है 13 का स्क्वायर 169 कर देना, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डाल देना दैट इज 144 इज इक्वल्स टू 1, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो। ठीक है जी, let me erase all these things. Yes, after this question number 16 is also your homework. Question number 17, it's very simple. Question number 17, see, foci is given to you which is plus minus 3,0 and a is given which is equals to 4। सो बेटा आपका फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल टू, एक्चुअली क्या होगा आपका, ये आएगा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो आपका सी जो है वो 3 मिल गया आपको, ए आपको 4 मिल गया, आप बी निकाल दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, योर ए स्क्वायर वुड बी 16, सी स्क्वायर वुड बी 9, सी गिवन है ना 3, तो सी स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा plus b square, so your b square would be 16 minus 9, that would be 7, so your this is your b square। ठीक है, तो वही इक्वेशन डाल दो आप, जनरल इक्वेशन ये होती है, डाल दो उसमें वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। सो बेटा ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज योर होमवर्क। और चलो एक मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 में करा देता हूँ। इसमें बेटा आपको बी गिवन है 3, आपको सी गिवन है 4। ठीक है, आप पहले ए निकालो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, योर बी स्क्वायर इज 9, योर सी स्क्वायर इज 16, तो आपको बेटा आ गया 25, योर ए स्क्वायर इज 25 एंड योर ए इज 5। सो आपका ए बड़ा आ रहा है। ठीक है, और बी आपका 3 आ रहा है, ए आपका 5 आ रहा है, बी आपका 3 आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, द फोकाई एक्स एक्सिस पर है। अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई करते हो आपकी इक्वेशन यही होगी, जनरल इक्वेशन आपकी यही वाली होगी, दिस वुड बी द जनरल इक्वेशन। तो इसमें आप ए और बी की वैल्यू डाल देना, खत्म क्वेश्चन, इसी में डाल देना, इसी जनरल इक्वेशन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ए आपका 5 गिवन है, ए स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और बी आपको 3 गिवन है, बी स्क्वायर वुड बी 9। सो जब पुट करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन योर ए स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, योर बी इज 3 स्क्वायर इज 9,
that is equals to 1. So this would be the required equation. Got it? तो बेटा ये 18 तक क्वेश्चंस थे, ठीक है, आगे मैं करा रहा हूँ, प्लीज वेट. See, next is your question number 19. 19 और 20 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो मैं 19 कराता हूँ, 20 आपको खुद करना होगा, ठीक है. द सेंटर एट 0 0 द मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस. अब बेटा आपका तो इसका फिगर जो बनेगा वैसे बनेगा. सी, ठीक है. and the passes through the point this and this. तो बेटा इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन द मेजर एक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो आपको फर्स्ट जो पॉइंट गिवन है जिसे पास कर रहा है वो आपको गिवन है 3,2. तो अब 3,2 पुट कर दीजिए इसके अंदर. एक तो पॉइंट आपको ये गिवन है और एक पॉइंट आपको 1,6 ये भी गिवन है. तो दीज टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू थ्रू विच योर एलिप्स इज पासिंग. तो पहले मैं ये पॉइंट क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई के प्लेस पर ये पॉइंट पुट कर दूंगा. एक्स पुट करूंगा 3, वाई पुट करूंगा 2. सो व्हेन यू विल पुट इन दिस इक्वेशन यू विल गेट 9/b स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अब मैं ये सेम पॉइंट्स, क्योंकि जो आपका एलिप्स है इस पॉइंट से भी तो पास कर रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो योर एक्स इज 1, so 1/b square plus your y is 6, so it would be 36. That is equals to 1. So this is equation number 2. Okay, so now here you have to apply elimination method. Okay, so what I am doing, I am multiplying this equation by 1 and this by 9. ठीक है ना. तो मैं b वाले सेम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस इक्वेशन को 1 से करा, इस इक्वेशन को मैंने 9 से करा. तो when you will multiply you will get 9/b square plus 4/a square is equals to 1. And similarly here it would be 9/b square plus 54 . So it would be 324 over a square is equals to 9. Okay, just you have to change the sign, so this and this will cancel out. बेटा जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 4a square माइनस दिस, सो यू विल गेट माइनस 320 ओवर a square दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8. ठीक है, 1 minus 9 you will get minus 8. This minus and minus will cancel out and you will get 320 over 8 that is equals to a square. So you will get 40. Your a square would be 40. Okay, so you have to put this value of a square in any one of the equation 1 or 2. So I am putting in 1. So when you will put a square equals to 40 in equation number 1, you will get 9/b square plus 4/40 is equals to 1. Okay, so 9/b square is equals to, ये आपका 1/10 हो जाएगा बेटा. इस 1/10 को आप उस साइड पर लेके आओगे तो माइनस 1/10 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 9/10. ठीक है, तो 9/b स्क्वायर, प्लीज वेट, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं फिर सॉल्व. योर 9/b स्क्वायर is equals to 9/10. So 9 and 9 will cancel out and your b square would be 10. ठीक है, ये आपका b square 10 आ रहा है, आपका a square क्या आ रहा था 40. तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या थी, x square over b square plus y square over a square is equals to 1. This was a general equation. पुट कर दो वैल्यूज, x square upon 10
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की। सो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। ठीक है, और 20 भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस को। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क। फाइन। सो हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं इस चैप्टर की। सो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू हाइपरबोला। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो, ईच सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। मिसलेनियस नहीं करनी है इस चैप्टर की। क्लियर है? मिसलेनियस नहीं करनी है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।